ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ और तेनू अलग करके बैठिया है, इन्हां नू हटा दे तो फिर मैं तो तेरे नाल ही हां। समझ लो जरा सारे जी इस चीज नू कि परमात्मा नू खोजण वास्ते किते दुनिया नू छड्ड के जंगलां जाण दी लोड़ नहीं, क्योंकि जंगल भी दुनिया च ही है, पहाड़ भी दुनिया च ही है, गुफावां भी दुनिया च ही है। इसलिए दुनिया छड्डण दा मतलब की है कि अपने अंदरों असीं वो नफरत नू छड्डना है, अपने अंदर दीयां बुरियां आदतां नू छड्डना है, अपने अंदर दी ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸਫਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और इत्थे कहना चाहांगे कि तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी कि नहीं तुसी या सुनी कदी कि संत तुलसीदास जी ने श्री राम नू ना दो नामां नाल पुकारिया, और इहदी थोड़ा चर्चा करांगे क्योंकि ये गुण साडे सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ छुपे हुए हैं। क्योंकि राम नू उन्होंने कहा, एक जगह लिखा भगवान श्री राम, और एक जगह ये भी लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये समझना जरा सारिਆਂ ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਨਿਯਮ, ਸੀਮਾ, ਹੱਦ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ नहीं करनी, मैं किसी नशे का इस्तेमाल नहीं करना, मैं क्रोध नहीं करना, मैं नफरत नहीं करनी, मैं बुरी जगह नहीं जाके बैठना, अगर ऐसे अपने जीवन के कुछ ऐसे नियम बना लीए और उन्होंने नियमां ते पक्के हो जाइए तो फिर सानू भी फिर इंसान तो महान बनदियां देर नहीं लगेगी। इसलिए कोई भी इंसान, हुण चाहे असी ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ संघर्ष ही वो पारसमणि है, संघर्ष ही वो पारसमणि है जो इंसान को महान और महान से भगवान बना देती है। कहते संघर्ष जीवन दा ना, हुण फर्ज करो संघर्ष किहनूं कहंदे है? जीवन दी मुश्किलों का सामना करना। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा इहनूं सोचिए, श्री राम की गल ही कर रहे हैं। हुण जदों श्री राम नूं राज्या मिलना सी ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਭਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ
अगर ये मुश्किल मेरे सामने आई तो मेरे वास्ते मुश्किल नहीं है। उन्हें ककई नूं धन्नवाद दिता। श्री राम ने की किया ककई नूं कि धन्नवाद, तुहाडा शुक्रिया जे तुसी 14 साल का मेरे वास्ते बनवास मंगिया तो मैं बहुत खुश हाँ। हुण ये नहीं किया कि आ गई मैं कीता की, जिद्दां हुण बंदे नूं कहदो निकल जा करो, मैं क्यों घरों निकलां, ये मेरा घर है, मैं नहीं जांदा छड्ड के। पर श्री राम ने एक बार नहीं किया, बल्कि क्या धन्नवाद शुक्रिया। तो उस वेले पूछा शुक्रिया कहदा, तेनू 14 साल का बनवास मिल रहा है। तो श्री राम कहते धन्नवाद मैं इसलिए दे रहा कि पहला कि मैनू अपने बाप के वचन नू पूरा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं खुश हाँ कि मैं अपने बाप के वचन तो पूरा कर रहा ना। और दूसरा मैनू ये खुशी है कि मैं भरत नू बड़ा प्यार करदा हां, मेरी जगह वो राजा बनेगा, मैनू अपने राज तिलक तो ज्यादा वो राजा बनने की खुशी है। देखो अंदर प्यार। और तीसरा जरा हुण समझना कि मैं इसलिए खुश हाँ क्योंकि जंगल दे विच जाके मैनू साधु संतां दी, ऋषियां मुनियां दी संगत करन दा मौका मिलेगा और उन्हां दी सोबत विच बैठ के जो मैं नहीं जानदा मैं वो भी सिखाऊंगा, वो भी समझूंगा, ताकि मेरा जीवन होर बेहतर बन सके। देखो किहड़ी चीज कही श्री राम ने। और चौथा जरा हुण गौर करना। और चौथा कहंदे मैं तां भी खुश हाँ क्योंकि अज मेरी मां यानी ककई की तरफ इशारा किया, तुसी खुश हो तो तुहाडी खुशी मैं भी खुश हाँ। ये चार गल्लां कहियां श्री राम ने। इत्थों की पता लगता है, हुण अगर फर्ज करो वो बनवास ना जांदे तो फिर उन्होंने राजा राम ही रहना सी, मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवान राम बन जाना सी। फिर जरा सोचो जे जंगल जांदे ही ना, हनुमान ना मुलाकात ना हुंदी, रावण नाल युद्ध ना हुंदा, ये सारियां घटनावां ना हुंदियां, उन्होंने सिर्फ राज ही मिल जांदा तो असीं कहना सी राजा राम होए सी एक। पर अज असीं की कहंदे आ भगवान श्री राम। क्यों कहंदे आ? क्योंकि उन्होंने जीवन चाहने वाली हर मुश्किल नूं स्माइल दे नाल, खुशी दे नाल कबूल कीता कि आएगी देखा जाएगा, क्योंकि मुश्किलां जी गुजर के ही, अग जी गुजर के ही तो सोना निखरदा है, गहना बनता है। इसलिए अगर तुसी भी जीवन किसी उपलब्धि नूं पाना है तो फिर एक गल कहांगे कि रास्ते जाने वाली किसी मुश्किल तो कदी डरो ना, बल्कि विश्वास दे नाल कदम बढ़ाओ और अपनी नजर मंजिल ते रखो। तो रास्ते च कोई मुश्किल आ भी रही है तो इस विश्वास ना कदम बढ़ाओ कि जिदा दस्या विवेकानंद जी ने कि संघर्ष ही वो पारस मनी है जो इंसान को महान और महान से इंसान से महान और महान से भगवान बना देती है। हुण अगर ऐसी भी महान बनना है तो महान किन्हां नूं किया जाता है? जिन्हां ने मुश्किलों नूं देख के कदी हार नहीं मन्नी, जिहड़ी बड़ी तो बड़ी मुश्किल विच भी साहस नाल अगे वधदे चले गए। अज महानता दा सेरा उन्हां दे सिर ही बन्निया जाता है। समझ आ रही कि नहीं? तो जे असीं सोचीए घर च बैठे ही सानूं कामयाबी मिल जाए, सफलता मिल जाए, महानता दा वो ताज सानूं मिल जाए, तो घर च बैठिया कदी सानूं महानता या कामयाबी नहीं मिलेगी। उहदे वास्ते सानूं कदम अगे बढ़ाना पैना ही है, एक विश्वास दे नाल, एक यकीन दे नाल। इसलिए सब तो पहला ना अपने आप ते एक यकीन करना शुरू करो। पता किहड़ा यकीन करना है? जिदा स्वामी राम कहंदे हुंदे सी कि इंसान की सब तो बड़ी शक्ति किहड़ी है। जरा हुण गौर करना, इंसान की सब तो बड़ी शक्ति उन्होंने किहड़ी कही है? स्वामी राम ने वो दसदे है कि अपने मूल्य को पहचानना, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जरा समझो सारे जी, ये दो गल्लां उन्होंने कहियां। अपने मूल्यों को पहचानो कि असीं अपनी कीमत को जानते हैं। जरा जवाब दो सानू सारे कि किसी को पता कि साडे जीवन की वैल्यू की है, साडे जीवन की कीमत की है, ये साडे जीवन का मोल की है? नहीं, कोई विरला ही समझदा है। और जेड़ा इहदी कीमत को समझदा, हुण समझ लो कि तुहानू छोटी जी अंगूठी कोई दे देवे ना, भाई ये सोने की अंगूठी है 1 तोले की, संभाल के रखते हैं असीं उहनूं, समझदे हो कि नहीं? एक भाई सोने की अंगूठी किते गुम ना हो जाए, तो जे गुम हो जाए रोना शुरू कर देंगे हैं, टेंशन लैनी है, ओह मेरा सोना गवाच गया। हुण सोने की असीं फिक्र करते हैं, पर सब तो कीमती की है? ये साडा जीवन, साडी जिंदगी, कि असीं इहदा मुल पांदे हैं। समझो जरा सारे जी। हुण तुहानू कोई कहे, फर्ज करो तुहाडे कोल सोने की अंगूठी कोई कहे भाई इहनूं खोल के नाली 'च सुੱਟ दे, गंदगी 'ਚ सुੱਟ दे, तुसीं सुੱਟ दोगे? जवाब दिओ सारे, सुੱਟ दोगे उन्होंने? लै कीमती है, नाली 'ਚ क्यों सुੱਟਾਂ? तो बड़ी हैरानी उदों हुंदी है जदों इंसान नशियां नूं अपने अंदर सुੱਟਦਾ है।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਲ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਲ ਪਹਿਚਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। इस जिंदगी के नाल ही हर चीज की वैल्यू है। इसलिए जो अपना मोल पहचान लेता है और जो खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करता है, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए दो चीज़ां कही, पहला अपने आप को कभी घट ना समझो, अपने आप को कभी निकम्मा ना समझो, अपने आप को कभी छोटा ना समझो। समझते हो कि नहीं? ऐसी की करते हैं, अपने आप को बड़ा छोटा कर देंगे, मुश्किलों हालातों बहुत बड़ा कर देंगे हैं। किसी को कोई बीमारी आ जाए ना, और ये बहुत बड़ी बीमारी है, वो तेरे शरीर अंदर है, तेरे तो छोटी है। अगर तू अपने विश्वास को बड़ा करे तो यदा अंत भी, क्योंकि ऐसी देखिया है कैंसर वाले ठीक होंदे देखिया है, ऐसी उन्होंने भी ठीक होंदे देखिया जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी। इत्थे सिकंदर ही बैठा है, घर का मैंबर, जरा हुण उठ के गया, हुण वो आप दस रहा सी कि मालको मैनू हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिता सी। किन्ने डॉक्टर ने जवाब दिया, सुक्की हड्डी सी मैं, तां कहंदे बचना नहीं है ना। और फिर दरबार ते जाके गया, मैं कुछ दिन दरबार ते रहा, तो मालको हुण देख लो मेरी सेहत भी ठीक है, तो बच्चे भी है मेरे, किन्नियां रहमतां मेरे मालिक दी। सो दसना की चाहते हैं कि जदों असीं किसी दुख नूं बड़ा समझ लैंदे आ, तां जिहनूं बड़ा समझ लिया फिर वो ना साडे ते हावी होना ही है। तो जे बंदा कहे कोई भी दुख आया है तो मैं डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी, बल्कि विश्वास करना उस शक्ति दे जिसने मैनू पैदा किया है कि मैनू ठीक भी करेगी, मेरी रक्षा भी करेगी, और मैनू ये मुश्किल चो जरूर बचाएगी। जदों असीं ये विश्वास करते हैं तो फिर शक्ति अपना काम करना शुरू कर देंदी है, क्योंकि है तो अंदर ही ना। जरा समझना सारे जी। हुण कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें एक गल बड़ी प्यारी कही है, वो कहते एक पानी के गिलास के अंदर ही इन्नी एनर्जी है कि अगर विज्ञान वो एनर्जी भी इकट्ठा कर लवे तो एक बड़ा शिप कहते पूरी दुनिया चक्कर लगा सकता है। कहते इन्नी एनर्जी है वो पानी के गिलास अंदर। तो सानू हैरानी होंदी है कि जे इन्ने के पानी के गिलास अंदर उन्होंने इशारा किया कि इन्नी एनर्जी है कि अगर विज्ञान इनू समझ लवे, इकट्ठी कर लवे, क्योंकि वैसे तो कहते एक अणु के अंदर भी बड़ी ताकत है, समझते हो कि नहीं? वो कहते पानी के गिलास अंदर इन्नी एनर्जी इकट्ठी कर लवे तो एक शिप नूं इन्नी ऊर्जा मिल सकती है कि वो दुनिया चक्कर लगा सकती। तो जरा सोचो, जे पानी के गिलास अंदर इन्नी एनर्जी है तो तुहाडा इन्ना शरीर है, कहते 70-72% तो पानी ये अंदर है, तो तुहाडे अंदर कितनी एनर्जी होएगी। पर वो एनर्जी कम कदों करती है जदों सानू पता होवे। और कोई भी एनर्जी पैदा करने वास्ते संघर्ष, जे तां पत्थरां नूं रगड़दे हैं तो फिर चिंगारियां कह दिओ फिर ही निकलदियां ना। जिदा कहा जाता है कि जदों बदामां ते सट पैंदी है ना, खोल ते सट पैंदी, गिरी फिर भी बाहर आती, जदों बीज टुटदा है तो फिर ही वृक्ष पैदा होंदा है। सो कहा जाता कि अंदरली शक्ति नूं बाहर आने वास्ते संघर्ष की, मेहनत की जरूरत होंदी है। पर अज मेहनत तो इंसान घबराता है। इहदा जरा सोचो, एक बच्चा अगर मेहनत करे तो मेहनत करन नाल, हार्ड वर्क करना, वो बड़े तो बड़ा अफसर भी बन सकता है, बन सकता कि नहीं? तो जे मेहनत ही ना करे तो फिर उन्हें उदा उदा ही रह जाना। यानी हर चीज इंसान हासिल कर सकता, पर उसदे वास्ते पहला इत्थे माइंड सैट करना पैंदा कि मैं हर मुश्किल का सामना करन नूं तैयार है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति बैठी हुई है जी बाहर आने नूं उतावली है, पर वो बाहर फेर ही आएगी जदों मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जिदा कई बार दसदे जमीन अंदर उपजाऊ शक्ति है, वो जमीन तो तैयार है तुहाडे घर नूं, तुहाडे ड्रमां नूं दाणियां नाल भरन वास्ते, पर जमीन कहती है पहले तू दाना पा, वो तू पाएगा तो 1000 गुना करके मुड़ू, पर पहला तेनू मेहनत करनी पैनी है, फिर मैं अपनी शक्ति नूं प्रगट करना है। तो जे किसान कहे, बंदा ही कहे लै मैं मेहनत नहीं कर सकता, तो फिर जमीन कहती है तू नहीं कर सकता, तो फिर मैं तेरा घर किद्दां भरां? सो कुदरत, परमात्मा, रब भी हर वेले तैयार बैठा है। कुदरती हर शय तैयार है साडे वास्ते, बस तैयारी करने की जरूरत सानू है। ताही कहंदे ना, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाई चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए ले। ते इत्थे भी इशारा किया, पहले तेनू कदम बढ़ाना पैना, फिर उसकी कृपा तेरे तक पहुंचेगी। और अगर तू ही मेहनत करने को तैयार नहीं तो फिर उसकी रहमत किद्दां हासिल होएगी? इसलिए अज तो पहले एक गल अपने अंदर बिठा लो
अपना मूल्य पहचानो। मूल्य का मतलब की है अपनी कीमत जानो। तुसी जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि एक कागज़ के टुकड़े ते सरकार मोहर ला दिंदी है तो उसकी कीमत पै जाती है। ये 5 का नोट हो गया, ये 10 का नोट हो गया, ये 1000 का हो गया, की है वो सरकार ने मोहर ही लाई ना, उत्ते छापा ही लाया ना। तो कागज़ हुण जिहड़ा नोट है, हुण फर्ज करो वो सफेद ही तुहाडे कोल जिहड़ा कागज़ नोट विच इस्तेमाल किया जाता, अगर वो कागज़ उद्दे ही तुहानूं दे दित्ता जावे तो उसदी वैल्यू है कोई? कहना लै भी कागज़ का टुकड़ा सफेद है की है, इकट्ठा करो सुट दो। कि चूरन चो नकली नोट निकलते हैं, बच्चे चूरन जिहा खाते होंगे तो उसकी वैल्यू होंगी कोई? तुसीं फड़ के सिट दो। पर जे ते सरकार मोहर लांदी वैल्यू, हाँ 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। वो कई बार असीं दस्सिया कि जे सरकार दे मोहर लाण नाल एक कागज़ की वैल्यू पै सकती है तो जरा देखो वो 9 महीने मां दे गर्भ च रख के परमात्मा ने तुहाडे ते मोहर लाई है कि तू मेरा है, तो तुहाडी वैल्यू की होएगी? तुसी क्यों नहीं अपना मोल समझते कि मैं अनमोल हाँ? बस थोड़ी जी मैनू मेहनत की जरूरत है, थोड़ी जी मैनू हिम्मत की लोड़ है, थोड़ी जी साहस की लोड़ है, और थोड़ा जा मैनू ऐसा साथ चाहिए जो मैनू सही दिशा दे सके तो मैं असंभव नू संभव कर सकता, नामुमकिन नू मुमकिन। पर जो अपने आप ही असीं कहना शुरू कर देंगे हैं मेरी कोई वैल्यू है नहीं, मैनू कोई पुछदा नहीं है, असीं फिर कई बार कई इत्थे भी कहना चाहांगे कि दुनिया तुम्हारी वैल्यू पावे ना पावे, क्योंकि कई बार दसी था ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको कैसे देखते हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं। दूजे की कहते हैं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जे इंसान नूं पता तू कही जा, जो कोई कहे ना वो तेतों नहीं होना, तू नहीं कर सकता, वो तू कही जा। पर एक दिन वक्त आएगा जो मैं करके, ताही तो ऐसी कई बार कही था कि जिंदगी में कभी हार मत मानना क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। वो जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाना है। जेड़े कहते तू नहीं कर सकता उन्होंने भी करके दिखाना कि लै भी देख। अज जी दुनिया कहती तू नहीं कर सकता, कल यही हाथ जोड़ के सानू पता सी तू कर देना, समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो मंजिल मिल जाती है ना फिर सारे कहते हैं देखिया सानू पहले ही पता सी इन्हें करके दिखा देना है। तो कहते कि लोगों दी गल्लां सुन के अपनी सोच ना बदलो, पर अपने विश्वास दे नाल वो दुनिया नू करके दिखाओ ताकि उन्होंने अपनी गल बदलनी पै जाए। एक वो हुंदे हैं जिहड़े दुनिया दी गल्लां सुन के अपनी सोच बदल दिंदे हैं, और एक वो हुंदे जो अपनी करनी नाल वो दुनिया दी गल्लां ही बदल दिंदे हैं, दुनिया की सोच ही बदल दिंदे हैं। क्योंकि अज दुनिया कहती तू नहीं कर सकता, पर वो मेहनत करके ऐसे दिखाते कि दुनिया कहती हाँ भी इन्हां करके दिखा दिता। इसलिए जो साहसी इंसान होंदा दुनिया पिछे लग के अपने आप नहीं बदलता, बल्कि अपने साहस नाल दुनिया नू बदल दिंदा है। इसलिए अज तो तुसी भी अपनी शक्ति नू पहला तो पहचानो कि मैनू पैदा करने वाला शक्तिशाली वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, और उन्हें मैनू बहुत ऊंचाई ते जाने वास्ते पैदा किया है। और कुदरत कहती है और रब भी कहता है ऊंचाई ते तू जाएगा अगर अपने अंदर विश्वास रखेगा, यकीन रखेगा। काहदा यकीन? जिदा इत्थे दसिया ना अपने मोल नू पहचानो, खुद ते तां परमात्मा ते विश्वास करो, खुद ते विश्वास और नाल क्या ईश्वर ते विश्वास। क्योंकि दो ही विश्वास जो मिल जाते हैं तो फिर इंसान असंभव नू भी संभव कर सकता है, नामुमकिन भी मुमकिन कर सकता है। इसलिए ताही तो असीं एक शेर कही इत्थे भी कहना चाहांगे, जरा समझना सारिਆਂ ने।